بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ ملیر سے ہمارے بیورو چیف آدم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ملیر کے علاقے میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کر کے علاقہ مکینوں نے میمن گوٹ کا مین روڈ بند کر کے ٹائر جلا کر سخت نعرے بازی کی۔ میمن گوٹ کے مین بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے علاقہ مکینوں نے میمن گوٹ کا روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ علاقہ مکینوں نے کہا، ہمارے علاقے زرگر محلہ میں مسلسل بجلی بند ہے، گرمی کی وجہ سے بچے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا، اگر بجلی بحال نہ کی گئی تو ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ قصور سے ہمارے بیورو چیف میاں افضال کی رپورٹ کے مطابق صدر تھانہ کے ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کی دبنگ کارروائی۔ صدر تھانہ پتوں کی پولیس نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی۔ پولیس کو 15 پر شفقت نامی شہری نے حبیب آباد چونیا روڈ پر ڈکیتی کی اطلاع دی۔ ایس ایچ او صدر تھانہ پتوں کی اور چوکی انچارج حبیب آباد محمد اشفاق بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ ڈاکو گاڑیوں کو سڑک کنارے کھڑا کر کے شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ ڈاکو نے پولیس کو دیکھتے ہی سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے محتاط انداز میں فائر کیے اور ڈاکو نے اپنی ہی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی کر دیا۔ ڈاکو کو علاج کے لیے تحصیل اسپتال پتوں کی لایا گیا۔ ڈاکو رستے میں ہی دم توڑ گیا۔ باقی ڈاکو تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد حنیف شہانی کی رپورٹ کے مطابق جام شورو پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ سنی علماء کونسل کی جانب سے بابری مسجد سے جام شورو پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کے شرکا کا پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے نعرے۔ پوری قوم اس وقت پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج ہماری ہے، یہ ملک پاک فوج کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ ہم پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ چند عناصر جو پاک فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مقررین کا خطاب کے دوران کہنا سے ہمارے بیورو چیف شریف گل کی رپورٹ کے مطابق سول اسپتال ٹھٹھا کے ڈائلیسس یونٹ میں رجسٹر تھیلیسمیا میں مبتلا 480 معصوم بچوں کو خون کی فراہمی بند۔ تھیلیسمیا کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین کے دورہ کے موقع پر لوائقین نے احتجاج کیا۔ بے حس انتظامیہ مسئلے کا جواب نہیں دے رہی۔ سول اسپتال ٹھٹھا مکلی میں مریضوں کے لیے کوئی سہولت نہیں، ادویات تک بھی دستیاب نہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ساہیوال محمد حیدر کی غیر قانونی زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اپڈیٹ کریں، رانا اشرف جوئیہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف ساہیوال محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ساہیوال کی غیر قانونی زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ زراعت ساہیوال محمد حیدر ہمراہ ڈاکٹر اویس زراعت آفیسر پی پی چیچا وطنی نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق کی ہدایات پر غیر قانونی زرعی ادویات بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے FIR درج کروا دی۔ ملزم غازی آباد روڈ چیچا وطنی پر زائد المیعاد زرعی ادویات فروخت کر رہا تھا۔ کارروائیوں کے دوران 90,000 روپے کی غیر قانونی زرعی ادویات تھانہ چیچا وطنی صدر میں مما درخواست بطور مال مقدمہ کے ساتھ جمع کروا دی ہے۔ دوران کارروائی اڈا غازی آباد، اڈا کھیوا، اڈا 6/11L سے مختلف زرعی ادویات کے نمونہ جات بھی حاصل کیے، جن کا رزلٹ آنے پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آدم سے ہمارے بیورو چیف عبد الرشید مغل کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو آدم تھانہ 20 سیکشن کی حدود میں 1 گھنٹے میں 2 ڈکیتی کی واردات۔ ٹنڈو آدم کے شہری دن دیہڑے لٹتے رہے، پولیس انتظامیہ غائب۔ تھانہ 20 سیکشن کی حدود بنگلہ روڈ سے کارپینٹر مصطفیٰ عباس سے دن دیہڑے 3 نامعلوم موٹر سائیکل مسلح ملزمان اسلحہ کے زور پر موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات بھی مذکورہ تھانے کی حدود گاؤں صفر بلوچ لنک روڈ پر ہوئی، جہاں تیل کمپنی کے ملازم عبد الرشید سے 3 نامعلوم مسلح ملزمان اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر موبائل فون نقدی چھین کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب۔ دونوں واقعات کی NC مذکورہ تھانہ 20 سیکشن پر درج کروائی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 روز قبل بھی بنگلہ روڈ پر 3 نامعلوم مسلح ملزمان نے حنیف راجپوت کی آرا مشین پر بیٹھے ہوئے
अफराद से भी 3 नामालूम मुसला मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल फोन, नकदी और एक बैटरी ले उड़े थे। बेदरपे वारदातों से इलाका मकीनों में शदीद खौफ और तशवीश में मुब्तला है। कैमरा मैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक अस्तगफिरुल्लाह दरिंदगी की इंतहा देखिए। 3 साल तक बाप अपनी ही बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा। बेटी के मना करने पर बाप बेटी को नहर में फेंकने और जान से मारने की संगीन धमकियां देता रहा। 3 बरस मुसलसल ज्यादती के बाद एक दिन मां ने देख लिया तो बाप मौका से फरार हो गया। पुलिस ने वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकया पंजाब के शहर हजरा शाह मुकीम का है, जहां बाप ने सफाकियत की सब हदें अबूर कर ली। 9वीं क्लास की जेर तालीम बेटी को मुसलसल 3 साल तक अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और धमकियां भी देता रहा। ज्यादती करने के बाद बाप अपनी बेटी को कहता था कि किसी को बताया तो नहर में फेंक दूंगा। बेटी खामोश रही। 3 बरस तक बाप का जुल्म सहने वाली बेटी एक बार फिर अपने बाप की ही हवस का निशाना बन रही थी तो अचानक मां आ गई, जिसने बेटी के साथ वालिद को जिनसी ज्यादती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन और डीपीओ अली रजा शाह ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बावल नगर का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स व स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन और डीपीओ ने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस और मरीजों की निगाहत, इलाज, मुआलजे और अदवियात की फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने जिलाई अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों से भी बातचीत की और इनसे अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बाबत इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने MS और दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए। अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मेयर और टाउन चेयरमैन के इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत वज़ीर आला सिंध के मावन खसूसी व सदर पीपल्स पार्टी मीर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने की। एहतजाजी मुजाहिरे मलीर की इलेक्शन ऑफिस के सामने रिकॉर्ड करवाए गए। एहतजाज में मलीर के मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर कारकुनान की जानिब से मेयर कराची और टाउन चेयरमैन के जल्द इंतखाबात का मुतालबा और ताखीर करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अब्बास टालपर, इमदाद जोकियो, जाम मोहम्मद जोकियो, मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच, नबी बख्श पालारी, रफीक दादू जट, नजीर भुट्टो, रियाज बलोच जान, मोहम्मद बलोच, आगा तारिक पठान, दाद करीम बलोच, मुश्ताक मट्टू, सरी चंद करकरेजा व दीगर ने अवाम कारकुनान के साथ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन जानबूझकर मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने में वक्त लगा रही है। उन्होंने कहा जल्द अज जल्द डिप्टी मेयर और टाउन चेयरमैन का इंतखाब करें। इस मौका पर मुआवन वजीर आला सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा इलेक्शन कमीशन जानबूझकर कराची के मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन चेयरमैन के इंतखाबात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द अज जल्द मेयर और टाउन चेयरमैन के इंतखाबात नहीं कराए तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना देंगे। मजीद उनका कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरअमन जमात है और आइन में रहते हुए अपना हक मांग रही है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ एक दहशत गर्द तंजीम है जिसके दहशत गर्दों ने 9 मई को फौजी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हो चुका है क्योंकि इमरान खान एक गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ शख्स है। मजीद उनका कहना था कारकुनान से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम को आड़े हाथों लिया और कहा सुन लो तुम्हारे हाथों की लकीरों में कराची का मेयर बनना नहीं है। उन्होंने कहा हाफिज नईम रहमान और जमात इस्लामी कराची के मेयरशिप के चक्कर में पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कान खोल कर सुन लो कराची का मेयर सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का जयाला ही होगा। ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा मीरपुर साकरों के साबिक टाउन चेयरमैन इकबाल अहमद खास खेली के इस्तकबाल के लिए
इनके गांव भारो कट्टी बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया, जिसने इसका शुक्रिया भी अदा किया। आजाद पैनल साकरों के कौंसलर अब्दुल अजीज कामयाब होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, ताहम उन्होंने इकबाल अहमद खास खेली के हक में दोबारा कौंसलर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कोटी बरादरी की जानिब से इकबाल अहमद खास खेली के आजाद में रैली भी निकाली गई। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायदाबाद जलंधर ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबला मुल्जिमान नामी ग्रामी डकैत बिलाल उर्फ बिल्ला, फैसल और फिर जुगनू और इन डाकुओं के खिलाफ थाना शाह लतीफ में कई FIR दर्ज हैं। वारदात के दौरान पुलिस मौका पर पहुंच गई। डकैतों ने पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस का बहादुर PC बहादुर और PC 62 जख्मी। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब। थाना शाह लतीफ के SHO को इत्तला मिलते ही मौका पर भारी नफरी पहुंच गई। पुलिस के बहादुरों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और डकैतों की तलाश जारी। ऐसे मुलजिमान को कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। दरिंदा सिफ्त बेटे ने ख्वाहिश पूरी न करने पर बाप को मौत की घाट उतार दिया। इनकी फरमाइश पूरी न करने पर बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। जिला पत्थर के नवाई इलाका दरिया खान में बेटे ने बाप से जिद की कि उसे आईफोन लेकर दें। बाप गुंजाइश न होने पर माली हालात की वजह से बेटे की जिद पूरी न कर सका, जिस पर बेटे ने बाप को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी बाप दौरान इलाजो मुआलजा दम तोड़ गया। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसनैन नवाज। तो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मंशनाबाद के गांव बछियां वाली से गांव के दरमियान से गुजरने वाला रोड दरियाए सतलज के किनारे पर बसने वाले लोगों के लिए इस इलाके का वाहिद रोड है, जो 10-12 गांव को आपस में मिलाता है। बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। थोड़ी सी बारिश के आ जाने से हफ्तों तक पानी खड़ा रहता है। वहां से लोगों का गुजरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज हमारा वहां से गुजरना हुआ, बड़ी मुश्किल से सामना हुआ। हमने एक बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि इस रोड को खराब हुए कितना अरसा बीत चुका है, तो उसने बताया कि 25 साल बीते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग अपना कीमती वोट भी अपनी सियासी पार्टी को कास्ट करते हैं। यहाँ 3 बड़ी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, शाह बरादरान, लाले का बरादरान और कालू का वट्टू, जो हर बार इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस मेन रोड की तरफ किसी भी सियासी लीडर का ध्यान नहीं। हर बार अवाम के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, महकमा हाईवे डिपार्टमेंट और मुतलका DCO बावल नगर से गुजारिश है कि अपने खसूसी बजट से कुछ ग्रांट यहाँ लगा कर खिदमत खल्क की जाए और आवाम को इनका हक दिया जाए। आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा? सियासतदान कब तक अपनी सियासत चमकाते रहेंगे? स्पेशल रिपोर्ट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर के VN मंशियात से पाक रियासत के मुताबिक जिला पुलिस मुजफ्फराबाद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन 120 ग्राम चरस बरामद की और दौरान तफ्तीश मुल्जिम मुश्ताक की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए 1 किलो 220 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कार्रवाइयों में SSP मुजफ्फराबाद मिर्जा जाहिद हुसैन की खसूसी हिदायत और DSP हेडक्वार्टर्स फैजुर रहमान अब्बासी की निगरानी में SHO थाना पुलिस गढ़ी दुपट्टा मंजर हुसैन की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मुश्ताक उर्फ इरफान वल्द मुतवल्ली खान साकिन वजीरस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरस्तान लोअर वाना से ताल्लुक रखने वाला नौजवान डॉक्टर अमान वजीर की मेहनत रंग ले आई। नानजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना से PhD मुकालमे में सुरखरू हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं शाह अली खान की इस रिपोर्ट में। जी अपडेट कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से ताल्लुक रखने वाला नौजवान डॉक्टर अमान वजीर ने नानजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अपने PhD के तहकीकी मुकाले का कामयाबी से देखा किया। याद रहिए कि डॉक्टर अमान वजीर का मुकाला बैनुल अक़वामी माहिरीन से पहले ही मंजूर हो चुका था।
नामजी नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना से डॉक्टर अमान वजीर ने मुकाले का दिफा किया, जिस पर यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया और फैकल्टी ने उसको मुबारकबाद पेश किए। डॉक्टर अमान वजीर ने अपनी कामयाबी को अल्लाह ताला की फजलो करम, अपने असातिज़ा कराम की बेहतरीन सुपरविज़न, अपने वालिदैन की दुआएं और दोस्त अहबाब की नेक तमन्नाएं करार दे दिया। शाह वली वजीर, फायो न्यूज़ प्लस, लॉयर वजीरिस्तान। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यास्मीन मुनीर शेख की रिटायरमेंट पर मेमनगोड सरकारी अस्पताल सिंध गवर्नमेंट एमएस डॉक्टर मोहम्मद साले किरण के जनरल सेक्रेटरी सलीम जी मेमन और दीगर डॉक्टर्स की टीम की तरफ से अलविदाई पार्टी दी गई। तकरीब में इसकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर यास्मीन मुनीर ने अपने शोबे में बेहतरीन खिदमात दी हैं, जिसकी वजह से इसका नाम ज़ेरे बहस है। इतने बड़े ओहदे पर रहकर खुद ओपीडी में मरीजों का चेकअप करके इनके मसाइल का हल करने में अपना किरदार अदा किया, आज इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से मुआशरे में इनको मकाम मिला। आखिर में केक काटा गया और फूलों के गुलदस्ते देकर इनको इज्जत से भी नवाजा गया। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजा शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर एक खातून और मर्द की जानिब से लिफ्ट लेने के बहाने कार सवार को असलहा के जोर पर लूटने की कोशिश। मुजफ्फराबाद कार सवार मजम्मत करने पर जख्मी। मुजफ्फराबाद अवाम की जानिब से लूटने की कोशिश करने वाले मर्द और औरत को पकड़कर जब्त को पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फराबाद वाकया कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा असनाड़ के करीब पेश आया। SHO थाना सेक्रेटरी राशिद हबीब मुजफ्फराबाद मुल्जिमान ने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल की खराबी का बहाना बनाकर कार सवार से लिफ्ट ली। मौका पाकर कार में सवार बच्ची पर तेज धार आला रखकर लूटने की कोशिश की। मजामत पर कार सवार पर हमला करके जख्मी कर दिया। सड़क के किनारे राहगीरों ने मुदाखलत करके मुल्जिमान को पकड़कर जरकूब किया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। SHO थाना सेक्रेटरीट ने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।